व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। दीज क्वेश्चंस आर डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड दीज क्वेश्चंस आर क्यूरेटेड एज पर द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। Consider the following statement with reference to the insolvency and bankruptcy code. Okay, now the first statement is the National Company Law Tribunal, that is NCLT, is the deciding authority for the corporation and the partnership firm. Actually, this statement is incorrect because the National Company Law Tribunal is the deciding authority for the corporation. ठीक है, so basically it is a deciding authority for the corporation and limited liability. ठीक है, you can see from here that National Company Law Tribunals, ठीक है, so it is the deciding authority for the corporation and the limited liability. ठीक है, not the partnership firm. partnership firm के लिए ये नहीं है. okay, so this you should know from here. पार्टनरशिप फॉर्म के लिए फिर कौन है? दी पार्टनरशिप फॉर्म्स और इंडिविजुअल्स, इन दोनों के लिए कौन है? इट इज़ दी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल. सो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है, इट इज़ दी डिसाइडिंग अथॉरिटी फॉर दी इंडिविजुअल पर्पस एंड दी पार्टनरशिप पर्पस. Okay, and National Company Law Tribunal, it is the deciding authority regarding the corporation and limited liability. So from here the first statement is incorrect. The second statement is the pre-packed insolvency resolution process was introduced for all the corporate agencies in the financial distress. So actually this is also incorrect because the pre-packed insolvency resolution, okay, so it is not used for the all for the corporate agencies. Actually it is used for the MSME, that is the micro, small and medium enterprises. So from here both the statement are incorrect. हमें फाइंड क्या करना था, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो नीदर इज द करेक्ट ऑप्शन, नो नथिंग इज करेक्ट फ्रॉम हेयर. नहीं, नाउ हम बात करते हैं. इट इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. So the Parliament introduced the Insolvency and Bankruptcy Code in November 2016. Okay, now the National Company Law Tribunal. Take what is this? It is the authority. It is the authority for the corporation regarding the limited liability firms and individual partnership firm. So in दोनों firms के लिए क्या है? It is the corporation. And there's one more thing. The National Company Law Tribunal, it is the authority for the corporation and the limited liability. And Debt Recovery Tribunal, it is the corporation for the individuals and the partnership. Next is the pre-packed insolvency resolution. ये क्या है? It is the alternative resolution process for the MSME. तो ये पता होना चाहिए. And the amount required to initiate the pre-packed insolvency is between the 10 lakhs to 1 crore. So this is the amount. अगर इसके बीच का आपका amount है, so you can initiate the pre-packed insolvency resolution. Now Parliament ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था the insolvency and the bankruptcy code in 2016. ठीक, और इसके अंतर्गत बेसिकली इसके जो 4 एलिमेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट इज द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज एंड एजुकेटिंग अथॉरिटीज. तो ये क्या होते हैं? दीज आर दी 4 एलिमेंट्स ऑफ इट. ठीक, एंड दिस आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स जो है, इसकी डिसाइडिंग अथॉरिटी फॉर द कॉर्पोरेशन एंड द लिमिटेड लायबिलिटीज एंड इंडिविजुअल पार्टनरशिप्स. ओके, इसकी एजुकेटिंग अथॉरिटी है कौन? दी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स. ओके, नाउ moving forward on the next question, it is regarding consider the following reasons. हमें रीजंस को बताना है. now which of the above locations falls in Ukraine? कौन सी जो लोकेशन है वो यूक्रेन में फॉल करती है. ठीक है, तो अभी अगर आप इस मैप को भी देखें थोड़ा सा, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा. जैसे यूक्रेन की में इस क्वेश्चंस में क्या बात किया गया, कौन कौन सी बात किया गया. पहले बात की गई खेरसोन की, और उसके बाद बात किया गया है तिरस्पोल के बारे में. ठीक है ना. तो खेरसोन आपको पता होगा, इट इज़ दी यूक्रेन ओनली. ओके, बट जो तिरसापोल है, इट इज़ इन द रोमानिया. तो दिस इज़ इनकरेक्ट. तिरसापोल नहीं होगा. जो खेरसोन है वो इट इज़ इन द यूक्रेन. एंड नेक्स्ट इट इज़ इन द कॉर्नोवॉस्क, इट इज़ इन द रशिया. ओके, सो कॉर्नोवॉक कहाँ पे है? इट इज़ इन द रशिया. रोमानिया में कौन सा है? तिरस्पोल. तो यहाँ से हम देखेंगे, सो द करेक्ट ऑप्शन
विल बी, हमारा जो हो जाएगा इट विल बी बी, दैट इज 2 and 3. खेरसॉन इट इज इन यूक्रेन एंड दी सेंकीवा इट इज ऑल्सो इन द यूक्रेन. त्रिस्पोल कहाँ पे है? रोमानिया में है. इट इज इन द रोमानिया. एंड दिस कॉर्निवॉस्क दिस इज इन दी रशिया. तो ये रीजंस पूछे गए थे कुछ, यहाँ से पता होना चाहिए. द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट हम बात करते हैं विच what is or are the salient features of the GST goods and services tax. ठीक है, so goods and services tax के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? First is it is based on the principles of the origin based consumption taxation. No, it is incorrect option because the GST is not based on the origin based consumption taxes but it is based on the supply based. ठीक है ना, supply and manufactured based. तो ये जो है जो जीएसटी लगता है इट इज़ बेस्ड ऑन दी सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी प्रोडक्ट और दी कमोडिटी. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन दी ओरिजिन कंजम्पशन. ठीक, सो दिस इज यू शुड नो फ्रॉम हियर. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट. सेकंड इज द टोबैको एंड द टोबैको प्रोडक्ट वुड बी सब्जेक्टेड टू द जीएसटी. दिस इज करेक्ट ऑप्शन. जो टोबैको और जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं दे आर दी सब्जेक्टेड टू द जीएसटी. एंड यू शुड ऑल्सो नो कि जो सेंटर होती है वो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा जो एक्साइज टैक्स है, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स है वो भी लगाती है. तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए. और टोबैको प्रोडक्ट्स में जो मोस्टली होता है द टैक्स इज़ वेरी हाई. ओके, so this second is the correct option. The next is the GST would apply on all the goods and the services including the alcohol for the human consumption. No, this is incorrect. Actually the GST is not apply on the alcohol. ठीक है, तो अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है. जस्ट लाइक दी पेट्रोल, डीजल्स, क्रूड ऑयल. ठीक है, तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो जीएसटी है वो उससे बाहर है. इट इज़ आउट ऑफ द रेजीम ऑफ द जीएसटी. ठीक है, सो फ्रॉम हेयर ओनली 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हेयर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द सेलियंट फीचर्स कौन कौन से जीएसटी के. जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज अगेंस्ट द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड. सो मीन्स जीएसटी इज अप्लाई इन द केस ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड एंड सर्विसेज. ठीक है, एंड नेक्स्ट इट इज़ बेस्ड ऑन दी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन. तो जीएसटी क्या है? इट इज़ दी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन एट प्रेजेंट ओरिजिन प्रिंसिपल ऑफ द ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन. तो सपोज ये एक ए स्टेट है, बी है. सो ए से बी में अगर कोई आइटम जा रहा है, कमोडिटी जो है, ठीक है, कमोडिटी अगर मूव कर रही है सो इट इज़ दी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. यानी कि जो बी जहाँ पर जाएगा, ये मतलब कि जो कमोडिटी बी में जाएगी सो यहाँ पर इस पर एक टैक्स क्या होगा, इसमें टैक्स लगेगा. ठीक है, उस कमोडिटी पे. तो ये चीज़ पता होना चाहिए. ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक और चीज़ है, क्योंकि सारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसने किया है? ऑल द मैन्युफैक्चरिंग इज डन बाय दिस ए स्टेट. लेट्स से दिस इज यूपी एंड दिस इज एमपी. सो ऑल दी मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन दी यूपी. सो दैट्स वाई जो सेंटर है, सेंटर विल प्रोवाइड द जीएसटी कंपनसेशन टू दी ए स्टेट. तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए. नेक्स्ट इज इट इज़ दी डुअल जीएसटी. सो जीएसटी बेसिकली 2 जीएसटी लगते हैं उसमें. द फर्स्ट वन इज द सेंट्रल जीएसटी एंड सेकंड इज द स्टेट GST. And you should also know this thing that there's one more concept. It is the interstate GST, that is the integrated GST. अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में अगर कोई भी आइटम मूव कर रहा है, कमोडिटी मूव कर रहा है, इन दिस केस ऑल्सो, तो यहाँ पर क्या लगेगा? हेयर विल बी दी इंटीग्रेटेड जीएसटी विल बी अप्लाइड. जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है वो क्या होगी? अप्लाई होगी. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ी सी और. तो दिस इज इंटीग्रेटेड जीएसटी. ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी इन द केस ऑफ द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स. तो दिस यू शुड नो. बाकी दी अल्कोहल जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इट इज़ आउट ऑफ द जीएसटी रिजीम. और अपार्ट फ्रॉम दैट क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल्स और जो नेचुरल गैस है, दीज ऑल आर आउट ऑफ द जीएसटी रिजीम. ठीक है, एंड टोबैको और जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आर सब्जेक्टेड टू द जीएसटी. एंड सेंटर विल ऑल्सो अप्लाई द सेंट्रल एक्साइज टैक्स, जैसे मैंने बताया अभी, सेंट्रल एक्साइज टैक्स ऑन दीज प्रोडक्ट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है? द फर्स्ट इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स लो और नो इंटरेस्ट लोन टू द लो इनकम कंट्रीज. नाउ दिस इज incorrect because the international financial corporation not provides interest to the low or no interest to the low country.
ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। एक्चुअली दिस इज प्रोवाइडेड बाय दी IDA, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो IDA जो है, ठीक है, IDA क्या प्रोवाइड करता है? IDA प्रोवाइड करता है लोन, ठीक है, ऑन द नो इंटरेस्ट टू द लो इनकम कंट्री। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट इज इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ the MIGA, that is the multilateral guarantee agency and international center for the settlement of the investment dispute। ठीक है, so this statement is basically also incorrect, ठीक है, because India is the member of it, ठीक है, India is the founding member of it। The third statement is India has established its own the BRICS arbitration center to strengthen the international arbitration with the foreign investor। तो this is correct option, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर हमारा जो ओनली जो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो D विल बी दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हेयर। नाउ अब अगर बात किया जाए वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक, सो द वर्ल्ड बैंक बेसिकली इट इज़ द कोलैबोरेशन ऑफ द IBRD एंड IDA और IDA ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। द IBRD इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड IDA इज द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स द वर्ल्ड बैंक। Okay, now World Bank के basically there are 4 component of it, 4 institution of it. The first is IBRD, as I told you, the International Bank for the Reconstruction and Development. This provides the loan and credit and the grant. The second is the IDA. It provides the loan to the low or no interest loan to the low income countries. जैसा कि पहले स्टेटमेंट में था कि that the IDA provides the no interest loan or the low income loan to the low income countries. Next is the IFC, that is the International Financial Corporation. It provides the investment advice. So this provides the investment advice and the asset management to the companies and the government. Next, the fourth is the MIG, that is the multilateral guarantee agency. ये क्या करता है? It ensures the lenders and the investor against the political risk such as the war. अगर कहीं पर political risk चल रहा है, just like basically if you talk about the Sri Lanka or you can talk about the Pakistan, so no one will be interested to invest in these countries. Okay, so that's why these countries, because these countries are at the risk of war, ठीक है। सो माइका क्या करता है कि मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी क्या करता है कि ये बेसिकली इंश्योर करता है लेंडर्स को और इन्वेस्टर्स को कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो देयर कुड बी अ सिचुएशन ऑफ वॉर। तो ये कौन बताता है? ये बताता है क्या? मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। नेक्स्ट इज दी ICSID, that is the International Center for the Settlement of the Investment Dispute। ये क्या करता है? This settles the investment disputes between the investor and the country। तो अगर कहीं पर कोई कंट्री है, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट कर गई है अपने लोन्स पर, ठीक है, अगर अपने लोन्स पर क्या करके डिफ़ॉल्ट कर गई है, तो ये जो है दैट इज़ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये करेगा, ये इन्वेस्टमेंट करेगा जो भी डिस्प्यूट्स है रिगार्डिंग द इन्वेस्टर एंड द कंट्री। ओके, नाउ ओके, एंड बेसिकली यहाँ बात करें इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर है किसका? IFC इन द 1956 एंड IDA इन द 1960। Okay, now the next question is regarding the anti-defection law, ठीक है, anti-defection law। So consider the following statement with reference to it। First is a member of the house belonging to any political party cannot disqualify for being a member of the house if he voluntarily give up his membership such as the political party। तो अगर if a member voluntarily gives his membership, तो क्या वो disqualify नहीं होगा? No, this is the incorrect option, he will be disqualified। Okay, now the second statement is the disqualification on the ground of the defection does not apply in the case when a member goes out his party in the case of the split of the 1/3 member of the legislature party। यानी कि अगर there is a party and there is a B party and let's say 1/3 member of the A party are merging with the B party, so this will not be defection। So is it correct? No, this statement is incorrect। एक्चुअली एक अमेंडमेंट हुआ था दी 91st अमेंडमेंट एक्ट इन 2003, ठीक। इन दिस अमेंडमेंट ये क्या कहा गया कि 1/3 नहीं, अगर 2/3 मेंबर जो हैं वो मर्ज कर रहे हैं किसके साथ? बी पार्टी के साथ, सो दिस विल बी नॉट काउंटेड एज दी डिफेक्शन। तो इसको हम डिफेक्शन नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, इसको हम डिफेक्शन नहीं काउंट करेंगे। पहले ये था कि अगर 1/3 मेंबर जो है वो मर्ज कर रहे हैं बी के साथ, सो दैट विल बी नॉट काउंटेड एज अ डिफेक्शन। बट अब क्या है कि फ्रॉम विद दी 91st अमेंडमेंट एक्ट
of 2003, it is said that if 2/3 members of party A are merging with the party B, so this will not count as a defection. So this second statement is also incorrect. So both the statement are incorrect from here. ठीक, तो this you should know from here. ठीक है, 91st Amendment Act of 2003, जिसके बाद में ये बोला गया कि if 2/3 members are merging, so it will be not counted as the defection. Then next, a member of the house belonging to any political party become disqualified if बेसिकली ऑन द 2 ग्राउंड्स. कौन कौन से ग्राउंड है? द वॉलंटरी गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच पार्टी. अगर वो वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप को गिव अप कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. द नेक्स्ट इज इफ ही वोट्स और abstain from the voting in such houses contrary to the any condition issued by the political party, ठीक है, without obtaining the prior permission such as the party such as not being condemned by the party within the 15 days. कहने का क्या मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि इफ़ ही वॉलंटरी गिव्स अप हिज मेंबरशिप, तो उस कंडीशन में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. द सेकंड इज इफ़ ही इज वोटिंग अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी. कहने का मतलब है कि अगर वो ए पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है और पॉलिटिकल पार्टी ए कोई बिल लेके आई है और वो भी पॉलिटिकल पार्टी को ए को बिलोंग करता है और अगर वो इस बिल को के अगेंस्ट में वोट कर देता है, ठीक है, सो दिस विल बी काउंटेड एज दी डिफेक्शन. तो ये चीज़ पता होना चाहिए. ठीक है, और बेसिकली ये चीज़ पता होना चाहिए जैसे यहाँ पे लिखा होता है पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रायर परमिशन ऑफ सच पार्टी एंड सच एक्ट हैज़ नॉट बीन कंडेम्ड बाय द पार्टी विद इन 15, यानी कि जो एक्ट जिसने ये काम किया है दिस विल बी कंडेम्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी विद इन द 15 डेज. तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए. और बाकी अगर कभी भी डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन कि रिगार्डिंग कोई भी अगर हियरिंग चल रही है, ठीक है, तो उसको प्रिसाइड कौन करेगा? प्रिसाइड करेगा द लीडर ऑफ द हाउस. ठीक है, द लीडर ऑफ द हाउस. ठीक, जो भी लीडर ऑफ द हाउस होगा, ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस मतलब कि जो भी ऑफिसर प्रिसाइड करेगा, नॉट लीडर ऑफ द हाउस, जो भी ऑफिसर प्रिसाइड करेगा, ऑफिसर ऑफ द हाउस. तो इस कंडीशन में द स्पीकर, in case of the Lok Sabha it is a speaker and chairperson in the case of the Rajya Sabha. Okay, so ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए. And for the defection we have 52nd Amendment Act of 1985. ठीक है, ये बात करता है, ये बात किसके बारे में करता है? the anti defection law. And anti defection law it is included in the 10th schedule. So 10th schedule में anti defection law is included. Now moving forward, now first the statement is what was the purpose of the inter-creditor agreement signed by the Indian banks and the financial institution recently? So what is the purpose of the inter-creditor agreement? Inter-creditor agreement इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है aim at the faster resolution of the stressed assets of ₹50 crores or more with which are under the consortium लैंडिंग. तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो भी 50 करोड़ से ज़्यादा का जो भी एसेट है, ठीक है, अंडर द कंसोर्टियम लैंडिंग, तो उसके रेजोल्यूशन पे क्या काम करता है? ये स्ट्रेस करता है. तो दिस यू शुड नो एंड दिस इज नोन एज द इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पीवाईक्यू क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ रीजन्स के नाम दिए हैं कौन कौन सी कंट्री में है. ठीक है, द फर्स्ट इज इट इज़ द कैटलोनिया. सो कैटलोनिया इज इन द स्पेन. यस, कैटलोनिया इन द Spain. Next is the Crimea. Crimea is the part of Hungary. No, Crimea is not part of the Hungary. Crimea क्या है? It is a peninsula. It is the peninsula of the Ukraine. Ukraine का ये peninsula था और to which जो रशिया था, रशिया has captured this peninsula in 2014. So basically it was the part of the Crimea. Initially was the part of the Ukraine. ठीक है, so it is the Ukrainian peninsula. But in 2024 the Russia captured it. Okay, so from here the second option will be incorrect. Next is the Mindanao. ठीक है, it is the part of the Philippines. Yes, Mindanao is the part of the Philippines and it is the second largest island in the Philippines. The first largest कौन है? Quezon. Quezon is the first largest island and the most populous island of the Philippines. And Mindanao is the second big island and the most populous island second big island of the Philippines. This you should know from the here. And the fourth is the Oromia. Oromia is in the Nigeria. No, it is not in the Nigeria. It is in the Ethiopia. ठीक है, तो it is the एक रीजन है कहाँ पर है? यूथोपिया. एंड व्हाट इज द, कैन यू टेल मी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूथोपिया? द एडिस अबाबा. Okay, so Addis Ababa is the capital in the Ethiopia. Ethiopia is in the Africa.
ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। तो यहाँ से देखा जाए द 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड PYQ है that India's ranking in the ease of doing business index in sometimes seen in the news, which of the following has declared that ranking। पूछ रहा है कि ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस इंडेक्स है इसको इसकी रैंकिंग कौन रिलीज करता है। सो यू शुड नो दैट वर्ल्ड बैंक रिलीज द ईज ऑफ डूइंग business index, so this you should know from here। next is which is or are the most likely the advantage of implementing the goods and services tax। so goods और services tax basically लगाने का क्या advantage होगा, ठीक है। the first is it will replace the multiple taxes collected by the multiple authorities and will thus creating the सिंगल मार्केट इन इंडिया। दिस इज करेक्ट ऑप्शन कि जीएसटी क्या है, कई सारे जो मल्टीपल टैक्स थे उनको क्या करेगा, उनको हटा के एक सिंगल इंटीग्रेटेड टैक्स है। सो दिस यू शुड नो। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करेंट अकाउंट डेफिसिट इन इंडिया एंड विल इनेबल टू इंक्रीज द फॉरेक्स रिजर्व्स in India। So this is incorrect options। Actually the GST is not directly related with the current account deficit or you can call it the foreign exchange। ठीक है, अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो एक्चुअली एक टर्म पता होना चाहिए, ट्विन डेफिसिट। ठीक, ट्विन डेफिसिट क्या होता है, ट्विन डेफिसिट में दो डेफिसिट्स होते हैं। द फर्स्ट इज इट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट, सेकेंड इज द फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो ये फिजिकल डेफिसिट और प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ट्विन डेफिसिट बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट की इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, यानी कि इनकम कम है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, यानी कि एक्सपेंडिचर माइनस इनकम जो अमाउंट होगा दिस विल बी द फिजिकल डेफिसिट। वी आर ट्राइंग टू अटेन द फिजिकल डेफिसिट ऑफ नियर अबाउट द 4%। तो ये हम अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेटमेंट इज इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड द साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल टू ओवरटेक द चाइना इन द नियर फ्यूचर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली वन। सो फ्रॉम हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। आई टोल्ड यू जस्ट दैट 10 schedules includes the anti defection law in the it came in the force in the with the 52nd Amendment Act of 1985। okay, and you should also know one thing that 91st Amendment Act of 2003 जिसमें पहले क्या था, पहले यहाँ पर पहले ये बताया गया था कि इफ़ 1/3 मेंबर्स मर्ज कर रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, सो दिस विल बी नॉट इंक्लूडेड अंडर द डिफेक्शन। ठीक, बट with 91st Amendment Act of 2003 it is said that if 2/3 members are merging with a political party, so this will not term as the defection। in now अभी मतलब कंडीशन क्या है कि अगर 1/3 मर्ज कर रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के तो ये डिफेक्शन को काउंट करेगा। ठीक है, तो दिस यू शुड नो फ्रॉम हियर। ओके, सो दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो यू कैन जस्ट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, स्प्रेड द चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें चैनल को। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।